Yes, friends. How are you all? Good afternoon, sir. Very good afternoon. I hope all of you are fine. I'm also fine. कैसे हैं सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Doing good. अच्छे हैं? Good. Let's start today's session. Okay. फर्स्ट सेशन में आपने क्या कराया था? First session we discussed house property, head, and all basic terms. Yeah, that was the first lecture. So charging section and all other aspects related with the income from house property we discussed. Okay. Let us now just have a recap. In last lecture we discussed income from house property. This is the second head of income, and in income from house property we discussed charging section. Charging section, that is section 22. What does it say? Charging section says that annual value of a house property of which assessee is owner is taxable, except if it is used by the assessee in his own business and profession. देखते हैं एक बार charging section. So charging section emphasizes on three important terms. One is annual value, second house property, and third is owner. So we discussed annual value. First of all, we discussed house property. What is house property? House property means any type of civil structure or civil construction, like residential house. That house may be a small hut or a bungalow or a villa or any structure of wood or auditorium or planetarium, okay, or palace or flat, any commercial complex, any shop, whether it is large or small, auditorium, planetarium, swimming pool, etc. All these are house property. So first term is house property. Second is annual value. So annual value, when we discuss annual value, in annual value we discuss how it is calculated. Annual value is based on four important terms. One is fair value, second is municipal value, third is standard rent, fourth is actual rent. So in general we discussed that annual value कैसा, annual value कैसा, then we discuss annual value कैसा. So annual value, let me take pen. Okay, annual value कैसा? So annual value कैसा? Annual value FM सा. Annual value कैसा? Annual value FM सा. Clear? FM सा मतलब F for fair value, F for fair value, this fair value, M for municipal valuation, S for standard rent, and A for actual rent. So annual value कैसा? Annual value FM सा. Annual value कैसा? Annual value FM सा. FM सा, how we calculate annual value? So first we take fair value and municipal valuation. Then we compare fair value and municipal value. Then whatever is highest, we take it out. Thereafter, we compare this amount with the standard rent, and whatever is the higher value, we take out. And thereafter, whatever is the lower value, we take out. And thereafter, we compare this amount with the actual rent, and whatever is the higher value, we take out. So कैसे कैलकुलेट करते हैं? फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू में से जो भी हाईएस्ट, जो एक वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे. जो भी लोएस्ट, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, जो भी हाईएस्ट. क्लियर? तो ऐसे 22,000 ये हमने डिस्कस किया था. तो हाउस प्रॉपर्टी इज क्लियर, एनुअल वैल्यू इज क्लियर, देन ओनर. देयर आफ्टर वी डिस्कस ओनर. ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर. तो ओनर में दो चीजें इंक्लूड होती हैं. ओनर तो होता ही है, ओनर मींस डीम्ड ओनर. तो देखते हैं वन बाय वन डीम्ड ओनर कौन होता है. पहला हमने देखा था स्पाउस. इफ एनी एसेट, एनी पर्सन ट्रांसफर्स हिज एसेट टू हिज और हर स्पाउस. तो अगर कोई स्पाउस को एसेट ट्रांसफर करता है तो वो स्पाउस कौन माने जाएंगे? स्पाउस भी डीम्ड ओनर माने जाएंगे. ऑल्दो दे आर नॉट एक्चुअली ओनर, दे आर देन ऑल्सो दे विल बी डीम्ड एज ओनर. तो जैसे हमने देखा था, डिस्कस किया था, मिस्टर एक्स हैं, उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड 1, हाउस प्रॉपर्टी 2 एंड हाउस प्रॉपर्टी. स्पाउस मींस तो वाइफ होता है ना. Spouse is a common term. For husband, spouse is wife, and for wife, spouse is husband. Clear है? Spouse का एग्जैक्ट हिंदी में टर्म देखे तो जीवन साथी, लाइफ पार्टनर. क्लियर? इन केस ऑफ वाइफ, husband is the spouse. In case of husband, wife is the spouse. Clear?
तो कोई भी हो सकता है। क्लियर? देखते हैं। तो मिस्टर एक्स ने अगर एक हाउस था उनके पास थर्ड, वो उन्होंने अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो मिस्टर एक्स ही ओनर माने जाएंगे क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर किया जस्ट टू सेव टैक्स। ऐसे ही मिस्टर एक्स ने अगर एक हाउस है वो ट्रांसफर कर दिया अपने माइनर चाइल्ड को, तो भी मिस्टर एक्स ही ओनर माने जाएंगे, माइनर चाइल्ड नहीं माने जाएंगे। इसके दो एक्सेप्शन थे, हमने देखा था। एक था लिव अपार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोर्ट से ऑर्डर होता है और फिर दोनों हस्बैंड वाइफ लिव अपार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो फिर लिव अपार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वाइफ के ही नाम माना जाएगा हाउस। ऐसे ही माइनर मैरिड डॉटर के नाम अगर ट्रांसफर किया हाउस इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए भी किया, तो भी माइनर डॉटर ही मानी जाएंगी ओनर। क्लियर? डीमिंग फिक्शन अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके थे, ये सब हम और डिटेल में डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। ओके, नेक्स्ट इम्पार्टेबल एस्टेट। तो इम्पार्टेबल एस्टेट में हमने देखा था, इम्पार्टेबल एस्टेट में हमने देखा था जैसे 4 ब्रदर्स हैं और आफ्टर डेथ ऑफ देयर फादर सपोज दे गॉट वेरियस प्रॉपर्टीज, तो वो प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी ऐसी थी इम्पार्टेबल एस्टेट जैसे टेम्पल, तो वो इम्पार्टेबल एस्टेट अगर किसी एक के पोजीशन में है, सपोज एल्डर ब्रदर के पोजीशन में है, तो भी वो एल्डर ब्रदर ही ओनर माने जाएंगे, चाहे तो वो लीगल ओनर नहीं है, बाकी सारे लीगल ओनर है, तो भी एल्डर ब्रदर विल बी डीम्ड एज ओनर ऑल्दो ही इज नॉट एक्चुअली ओनर। देन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये डिस्कस किया था हमने, एग्जांपल याद है ना? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 50 मेंबर्स ने मिलके एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाई और उसमें जो आपने डीम्ड एज ओनर बोला, तो उसमें क्या कहते हैं, आपने ये बोला कि स्पाउस के नाम में भी कर दे या माइनर के नाम में, पर फिर भी टैक्स उसी के नाम पे आएगा, मतलब मिस्टर एक्स के नाम पे, ये ना? यस बिल्कुल, मतलब ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं आएगा ना माइनर के नाम, ठीक है? यस बिल्कुल। जैसे सपोज वाइफ इज द ओनली अर्निंग मेंबर, हस्बैंड इज नॉट द अर्निंग मेंबर। ओके, वाइफ ही जॉब करते हैं, वाइफ को ही अर्निंग हो रही है, वाइफ के नाम पे 4 मकान है, उन्होंने एक मकान को हस्बैंड के नाम ट्रांसफर कर दिया विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, ईदर विदाउट कंसिडरेशन और विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। क्लियर? तो भी क्योंकि हस्बैंड की कोई अर्निंग नहीं है, वाइफ ने ऐसा किया, क्यों किया? जस्ट टू अवॉइड टैक्स बचाने के लिए, तो भी क्या माना जाएगा? वाइफ को ही ओनर माना जाएगा। और कैसा ओनर माना जाएगा? डीम्ड ओनर अंडर सेक्शन 27। क्लियर है ये बात? तो वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए अप्लाई होती है। समझ गए? जी सर, ओके। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी देखते हैं। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या था, अगर 50 मेंबर्स हैं सपोज, और 50 मेंबर्स दे ऑल कंट्रीब्यूटेड 1 करोड़ रुपीज, सो दे कलेक्टेड 50 करोड़ रुपीज। व्हाट दे डिड, दे क्रिएटेड अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और वो जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उसने एक प्लॉट परचेज किया और वो प्लॉट परचेज करके 50 यूनिट्स हाउस बनाए, वो सभी को एक एक यूनिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो लीगल ओनर है, एक्चुअल ओनर है, वो एक्चुअल ओनर कौन है? एक्चुअल ओनर इस केस में लीगल ओनर कौन है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो लैंड है वो किसके नाम है? वो लैंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम है, और लीगल ओनर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन सभी मेंबर्स को डीम्ड ओनर माना जाएगा। अगर मेंबर्स ने किराए पे उठा दिया, लेट आउट किया हाउस प्रॉपर्टी को और उन्हें अर्निंग भी हो रही है, तो क्या माना जाएगा? उन्हें ओनर माना जाएगा और टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ गए? फिर हमने देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई थी। फिर हमने देखा था सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो हमने बताया था ना, डिस्कस किया था, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। तो हमने बताया था देयर आर 2 एक्ट। कौन कौन से एक्ट होते हैं? एक होता है, यहाँ डिस्कस किया था, एक एक्ट होता है, ध्यान से देखो, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्ट। दिस called as TOPA, Transfer of Property Act, and second is called as SOGA, Sales of Goods Act. Clear है? ये जो TOPA है, Transfer of Property Act, it is applied on transfer of immovable properties. Immovable properties, whereas SOGA is applied on transfer of movable properties. ठीक है? Clear? So, in case of immovable property, transfer of property act, TOPA is applied. In TOPA, there is one section called as section 53A. Section 53A provides the provisions related with the part transfer. Part transfer में क्या हुआ कि एक मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स ने एक बिल्डिंग ट्रांसफर की, और वो बिल्डिंग किसे ट्रांसफर की? मिस्टर वाई को। तो क्या हुआ? मिस्टर वाई
कौन है, बायर है, और मिस्टर एक्स कौन है, सेलर है। तो बायर ने 50 लाख रुपीस पे कर दिए और हाउस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया। तो मिस्टर वाई के पास पोजीशन आ गया और उन्होंने अमाउंट पे कर दिया। तो क्या हुआ इस केस में, सेल परचेज ट्रांजैक्शन में क्या होता है, सेल परचेज ट्रांजैक्शन में जो ओनर हैं वो ओनर पैसा चार्ज करते हैं और पोजीशन देते हैं, यानी सेलर। और जो बायर होते हैं वो बायर क्या करते हैं, बायर पेमेंट करते हैं और पोजीशन लेते हैं। तो यहाँ दोनों काम हो गए। केवल एक चीज है गई, वो क्या, रजिस्ट्री। इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हुई। तो रजिस्ट्री नहीं हुई तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में अभी भी कौन ओनर है, मिस्टर एक्स ही ओनर है। लेकिन सेक्शन 27 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि ऐसे केस में ओनर किसे माना जाएगा, मिस्टर वाई को ओनर माना जाएगा। और ऑल्दो ही इज नॉट अ लीगल ओनर बिकॉज रजिस्ट्री नहीं हुई अभी, तो ये लीगल ओनर नहीं है, तो भी इन्हें क्या माना जाएगा, तो भी इन्हें ओनर माना जाएगा। और मिस्टर वाई को कैसा ओनर माना जाएगा, डीम्ड ओनर। क्लियर, मिस्टर वाई को डीम्ड ओनर माना जाएगा। क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। और लास्ट था लीज। अगर एक लेसर ने एक प्रॉपर्टी को लीज पे दिया, ठीक है, एक लेसर ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी को लीज पे दिया लेसी को। और जो लीज पे दिया वो कितने ईयर का लीज था, वो लीज था फॉर मोर देन 12 ईयर, 12 साल से ज्यादा। तो एक्चुअल ओनर तो कौन है, एक्चुअल ओनर तो जिसने लीज पे दिया वो है। लेकिन यहाँ पे क्या माना जाएगा, लेसी को ओनर माना जाएगा। और कौन सा ओनर माना जाएगा, वैसे तो लेसर ओनर है, लेकिन यहाँ किसे माना जाएगा, लेसी को माना जाएगा। और कैसा ओनर माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा। क्लियर। तो ये 5 एग्जाम्पल, 5 एक्सेप्शंस ऑफ ओनर्स के क्लियर हैं आपको, जहां पे डीम्ड ओनर को ही ओनर माना जाएगा। देखते हैं एक बार फिर से। देखो डीम्ड ओनर के केस में ओनर तो है, ओनरशिप की डेफिनेशन देख रहे हैं, ओनर का मतलब डीम्ड ओनर भी, तो ओनर तो है ही, डीम्ड ओनर भी ओनर है। और डीम्ड ओनर का फर्स्ट एग्जांपल, इफ स्पाउस ट्रांसफर्स एनी प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, देन द पर्सन हु ट्रांसफर्स विल बी डीम्ड एज ओनर, है ना। अगर कोई व्यक्ति अपने स्पाउस को या अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करेगा प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन के या बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के, तो वही ओनर माना जाएगा। सेकंड, इम्पार्टेबल एस्टेट। थर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इफ members of cooperative society creates a society and then they get one flat, then also, although cooperative society is the legal owner, then also members will be deemed as owner. Thereafter, part transfer under section 53A of TOPA. In case of part transfer, buyer, although registry has not been done, then also buyer will be deemed as owner. And in case of lessor, lessee will be deemed as owner if the lease term is for more than 12 years. Clear है यहाँ तक। अब देखते हैं एक बार हम आपको कंप्यूटेशन बताते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, है ना। कंप्यूटेशन ऑफ income from house property। ठीक है, कैसे कंप्यूट करते हैं देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कंप्यूट एनुअल वैल्यू। ग्रॉस annual value, or we call it as GAV।
How GAV is calculated? First of all, we take FR and municipal valuation. We take higher value. We compare both of them and we take higher value. Then we introduce the standard rent. We compare this value and standard rent, and we take lower value. And thereafter, actual rent. We compare this amount and actual rent, this amount and actual rent, and we take higher value. यहाँ एक फिगर आया हमारे पास, यहाँ एक फिगर आया, और ये जो फिगर है ये बाहर आ जाएगा, इसे हम बोलेंगे GAV. Gross annual value. Then what we do, we deduct from this amount municipal tax. Municipal tax you all know? बताओ म्यूनिसिपल टैक्स जानते हैं? सर हाउस टैक्स, हाउस टैक्स। हाउस टैक्स, यस, हाउस टैक्स। तो हाउस टैक्स कब होगा? हाउस टैक्स में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो पेड बाय ओनर, ओके, क्लियर? इफ it is actually paid by owner, then only house tax can be deducted. So when we deduct house tax from GAV, it is called as net annual value, NAV. Clear? ठीक है? Then नेट एनुअल वैल्यू बोलेंगे। net annual value, okay, net annual value. Then what we do, we deduct deductions. There are two deductions. Under section 24. First is standard deduction. And this standard deduction is fixed, that is 30% of net annual value. Yeah, if this net annual value, suppose this is 1 lakh, this is 1 lakh, then 30% of 1 lakh is 3 lakh. 30,000. 30,000. 30,000. 30,000. Clear? And second is interest. Interest. Okay. Interest on loan. Loan of what? Loan of house property. So whatever interest amount we deduct. Clear? So when we deduct this amount and this amount, then the balance is income taxable under house property. सर ये हाउसिंग लोन अमाउंट है।
हाउसिंग लोन, यस। इनकम टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं, देखो हाउ वी कैलकुलेट, हाउ वी कंप्यूट इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी हैड। फर्स्ट वी टेक fair rent and we take municipal valuation. We compare both fair rent and municipal valuation and take the highest figure. दोनों में कंपैरिजन करते हैं, दोनों में से जो हाईएस्ट फिगर होता है उसे लेते हैं। ये जो फिगर आता है उस फिगर से को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, और स्टैंडर्ड रेंट और इस फिगर से जो भी लोअर होता है उसे बाहर लेते हैं। फिर जो लोअर अमाउंट आता है उसे कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से और हायर लेते हैं। दैट मीन्स एक बार हायर, फिर लोअर, फिर हायर, हायर लोअर हायर, ठीक है? फिर हमारे पास आ जाती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से डिडक्ट करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स में एक कंडीशन है, एक तो एक्चुअल में पेड होना चाहिए और ओनर ने पे किया होना चाहिए। दैट मीन्स अगर टेनेंट पे करता है, कई केस ऐसे होते हैं ना जब टेनेंट पे करता है, टेनेंट को कह देते हैं आप किराए पे रह रहे हो तो आप ही हाउस टैक्स पे करोगे, म्युनिसिपल टैक्स आप ही पे करोगे, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन कब मिलेगा? जब दो कंडीशन हो, पहला एक्चुअल में म्युनिसिपल टैक्स पेड हो और दूसरा वो जो पेमेंट है वो किसने किया हो, ओनर ने पेमेंट किया हो। क्लियर? तो फिर जो भी म्युनिसिपल टैक्स होगा उसका डिडक्शन मिलेगा। जब म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा, वो क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू। सपोज नेट एनुअल वैल्यू 1 लाख रुपीज आया तो उसमें से दो डिडक्शन मिलेंगी। एक डिडक्शन तो कितनी मिलेगी, एक डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होगी, दिस इज स्टैंडर्ड 30% ऑफ एनएवी, इट इज फिक्स्ड 30% ऑफ एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। तो अगर एनएवी, इफ एनएवी इज 1 लाख तो 30% कितना होता है, 30,000 रुपीज। और सेकंड डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन मीन्स हाउसिंग लोन, जो इसी हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया था, जिस हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन कर रहे हैं उसी हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो लोन लिया था उस लोन की डिडक्शन मिलेगी। क्लियर? और जब ये लोन माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इनकम टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है? समझ गए? फिर देखते हैं। Yes, sir. Okay. Now the question arises, interest. How much interest we can deduct? There are two types of house property. Clear? Now we are checking the calculation of interest. Clear? How much interest we can deduct? So there are two types of house properties. One is called as self-occupied house property. Self-occupied means a house property in which the assessee is residing. ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जिसमें assessee खुद रह रहा है। क्लियर? और सेकंड हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी मीन्स ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो आपने किराए पे उठाई है, आपने खुद किराए पे उठाई है, ठीक है, और किराया आ रहा है। ये बात समझ में आती है सभी को? There are two types of house properties, ये समझ में आता है? बोलो ना। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। खुद की और जो रेंट पे लिए वो। खुद की और रेंट पे लिए। अब देखते हैं हम क्या चेक कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट का अमाउंट कितनी डिडक्शन मिलेगी, कितने अमाउंट इंटरेस्ट हमें डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 24(2). ठीक है? तो देखते हैं, इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, इफ योर प्रॉपर्टी इज लेट आउट देन देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। प्रॉपर्टी लेट आउट है तो फिर कोई भी लिमिट नहीं है, नो अपर लिमिट, देयर विल बी नो अपर लिमिट। नो अपर लिमिट का मतलब आपकी जितनी भी एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू होगी उतना आप डिडक्शन ले सकते हैं। क्लियर है? तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी है तो। दूसरा केस, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। एक बात और बता दें आपको, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है ना, यानी आप खुद रह रहे हैं, तो क्या किराया आ रहा है आपके पास? अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी, मकान है, उसमें आप खुद रह रहे हैं, खुद रह रहे हैं, तो क्या रेंट आ रहा है आपके पास? सर नो, रेंट नहीं आ रहा ना, क्योंकि खुद ही रह रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी में जो एनएवी होती है, नेट एनुअल वैल्यू जो होगी ऐसी प्रॉपर्टी की, वो नेट एनुअल वैल्यू हमेशा ऐसी प्रॉपर्टी की क्या होती है? नील। नेट एनुअल वैल्यू तो हो गई नील। ठीक है? तो ऐसी कितनी हाउस प्रॉपर्टी अलाउड है? पहले जो 2019 का अमेंडमेंट फाइनेंस बिल था, इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट, उससे पहले तक एक प्रॉपर्टी होती थी। कोई भी पर्सन कितनी प्रॉपर्टी कह सकता है? अगर उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं
तो वो ये कितनी प्रॉपर्टीज कह सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड? देखो, अगर एक पर्सन है उसके पास कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, एक मकान, ठीक है, 2 मकान, 3 मकान और 4 मकान, उसके पास 4 हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। 2019 से पहले तक वो कितनी प्रॉपर्टी कह सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड? केवल एक। लेकिन 2019 में गवर्नमेंट ने अलाउ किया इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट करके, नाउ वन पर्सन कैन क्लेम हाउ मेनी प्रॉपर्टीज एज ऑक्यूपाइड? मैक्सिमम 2। क्लियर? दिस इज हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, हाउस प्रॉपर्टी 3, हाउस प्रॉपर्टी 4। एसएससी कह रहा है मैं तो चारों प्रॉपर्टीज में रहता हूं। ध्यान से देखो, एसएससी क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आई रिजाइड इन ऑल 4 प्रॉपर्टीज। क्लियर? कुछ भी रीजन हो सकता है, वो कहता है दे आर इन डिफरेंट सिटीज एंड सो आई एम रिजाइडिंग इन डिफरेंट सिटीज। कभी मैं एक सिटी में रहता हूँ, कभी दूसरे सिटी में रहता हूँ, दिस इज द रीजन। कभी वो कहता है आई रिजाइड 3 months अ क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर आई रिजाइड इन फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड क्वार्टर सेकंड, थर्ड क्वार्टर इन थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर इन थर्ड। ऐसे कह सकता है। वो कह सकता है आई हैव अ लार्ज फैमिली, और लार्ज फैमिली है तो 4 हाउस प्रॉपर्टी में रहते हैं। कोई भी लॉजिक हो सकता है, ड्यू टू एनी रीजन। जो एसएससी है वो क्या कह रहा है? मैं तो चारों प्रॉपर्टी में रहता हूँ, मैंने किराए पे एक को भी नहीं उठाया, है ना। आई हैव नॉट लेट आउट एनी प्रॉपर्टी टू एनी टेनेंट, आई एम रिजाइडिंग इन ऑल 4 प्रॉपर्टीज। ऐसा कह सकता है कि नहीं ओनर, टैक्स बचाने के लिए? बताओ, कह सकता है ना? वो कहेगा सारी सेल्फ ऑक्यूपाइड, किराया तो उठाई नहीं तो किराया नहीं आया, किराया नहीं आया तो क्यों टैक्स है? ऐसा कह सकता है। तो गवर्नमेंट ने 2019 से पहले तक ऐसा वो एक प्रॉपर्टी के लिए कह सकता था, कोई भी एक, उसके पास चॉइस थी, कोई भी एक, एनीवन। अगर चारों में रह रहा है तो वो किसी भी एक प्रॉपर्टी को कह सकता था ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। 2019 में अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट करके कितनी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती हैं? 2। और ये जो 2 प्रॉपर्टीज है उसमें चॉइस है, एनी 2। तो एसएससी कह सकता है ये 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि वो रह तो एक्चुअली चारों में रहा है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कितनी प्रॉपर्टीज अलाउ करेगा? केवल 2। तो ये जो बाकी की 2 प्रॉपर्टी होंगी वो क्या मानी जाएंगी? वो मानी जाएंगी डीम्ड टू बी लेट आउट। वेरी गुड। ये क्या मानी जाएंगी? डीम्ड टू बी लेट आउट। समझ गए? तो बाकी को क्या माना जाएगा? डीम्ड टू बी लेट आउट। क्लियर है? समझ गए? तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है अगर, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब ये वाली प्रॉपर्टी जिसे हम सेल्फ ऑक्यूपाइड, अच्छा इन चारों प्रॉपर्टीज में से कौन सी 2 प्रॉपर्टी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड करे, उसे चॉइस मिलेगी ना? ही विल गेट चॉइस। वो उसकी चॉइस है, वो किसी को भी कह सकता है। तो जाहिर सी बात है वो कौन सी प्रॉपर्टी को एग्जाम्प्ट कराना चाहेगा? जिसकी एनुअल वैल्यू सबसे ज्यादा होगी ना। बताओ, जिस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो उसे एग्जाम्प्ट कराना चाहेगा। ठीक है? बाकी डीम्ड टू बी लेट आउट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, अगर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसकी एनएवी तो हो गई निल, तो इस निल में से भी इंटरेस्ट मिलेगा क्या? यस, निल में से भी इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर? निल में से भी इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर निल में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, जो भी अमाउंट होगा इंटरेस्ट का, तो तब तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना। बताओ सर, ये इंटरेस्ट किस चीज का है अभी? हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, उसका जो हाउस प्रॉपर्टी है वो डीम टू बी, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये मान लिया ये हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्लियर? तो हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो रेंट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। बताओ, नहीं आ रहा। रेंट नहीं आ रहा ना। रेंट नहीं आ रहा तो एनएवी तो क्या है? निल, 0। ठीक है? एनएवी निल है। तो इसमें से भी कुछ डिडक्शन मिलेगी क्या? वो कहेगा देखो मैं खुद रह रहा हूं मकान में, मैंने मकान खरीदा, एनएवी निल हो गई, लेकिन मैंने लोन लिया, वो लोन पे मैं इंटरेस्ट तो दे रहा हूं, स्टैंडर्ड डिडक्शन उसे नहीं मिलेगा। अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 का 30% कितना होता है? 0। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक डिडक्शन फिर भी उसे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट उसे मिलेगा। क्लियर? तो अगर 0 में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट को तो नेगेटिव फिगर आएगा ना। ये नेगेटिव को वो सेट ऑफ कर सकता है। ठीक है? अब क्वेश्चन ये राइज हो, ये इंटरेस्ट कितना मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलेगा? क्लियर? इंटरेस्ट की यहां तो लेट आउट प्रॉपर्टी है तो कोई लिमिट ही नहीं है। इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी देयर इज नो लिमिट, कितना भी हो सकता है इंटरेस्ट, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट है। तो वही देख रहे हैं कि कितनी लिमिट है। तो ध्यान से देखो, अगर लोन जो हाउसिंग लोन है वो 1499 के बाद लिया था,
एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वो जो लोन लिया है वो प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए या प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, तो फिर लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपीज। तो जो डिडक्शन मिलेगा वो इंटरेस्ट का कितना मिल सकता है, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज, मैक्सिमम लिमिट है ये। अगर इंटरेस्ट ही किसी का 1 लाख होगा तो 1 लाख ही मिलेगा, इंटरेस्ट ही 50,000 होगा तो 50,000 मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिलेगा, 2 लाख रुपीज। क्लियर है? और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा 30,000। इसका मतलब जो लोन आपने लिया था वो 1499, ये जो 1499 से पहले लिया था, या फिर आपने एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लिया, आपने ये जो लोन लिया वो किसी और के लिए लिया। मान लो ये जो लोन लिया था आपने वो रिपेयर के लिए लिया था, क्लियर, या रिन्यूअल के लिए लिया था, तो रिपेयर रिन्यूअल के लिए लिया था तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 30,000। अगर एक्विजिशन प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया था तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 2 लाख रुपीज। समझ गए? तो अब ध्यान से देखो, आपके पास एक ही हाउस है, सपोज यू आर ओनिंग ओनली वन हाउस, दैट हाउस इज ऑल्सो सेल्फ ऑक्यूपाइड, यू आर रिजाइडिंग इन दैट हाउस प्रॉपर्टी, तो नेट एनुअल वैल्यू उस हाउस का क्या हो गया, निल, 0। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 0 का 30%, 0, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा, सपोज आपका इंटरेस्ट था 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए इंटरेस्ट आप माइनस करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड में से, तो आपका जो इनकम है वो क्या हो जाएगा, वो इनकम हो जाएगा नेगेटिव। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या हो जाएगी, नेगेटिव 2 लाख रुपीज। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो जाएगी नेगेटिव 2 लाख। समझ गए? ये बात समझ में आती है? बोलो ना। जैसे ध्यान से देखो, एनएवी निकाला हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का, तो एनएवी आया निल, ठीक है। इसमें से माइनस किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन निल, नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा क्या, यस मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 2 लाख, तो मान लेते हैं 2 लाख ही है, पूरा आपका 2 लाख रुपीज इंटरेस्ट एक्चुअल में था। तो 2 लाख रुपीज अगर हमने माइनस किया, ये 2 लाख, तो 2 लाख रुपीज माइनस किया तो क्या आ गया, निल में से, 0 में से 2 लाख माइनस किया तो ये नेगेटिव का आ गया ना, नेगेटिव का 2 लाख आ गया। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड की जो इनकम हुई वो क्या हो गई, नेगेटिव 2 लाख। इसका क्या फायदा है, इसका बेनिफिट है, आप इसे सेट ऑफ कर सकते हैं। मान लो आपकी सैलरी की इनकम 10 लाख है, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, 10 लाख, तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी में से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को माइनस कर सकते हैं ना। समझ गए? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नेगेटिव 2 लाख और सैलरी की इनकम पॉजिटिव 10 लाख, तो पॉजिटिव 10 लाख में से नेगेटिव 2 लाख माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8 लाख। तो आपको टैक्स कितने अमाउंट पे देना होगा, 8 लाख रुपीज पे। तो फायदा है ना इस फिगर के नेगेटिव आने का, बताओ। समझ गए? यस, ठीक है। तो यहाँ तक डिस्कस करते हैं, इसके बाद टाइम ओवर हो रहा है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में 1-2 टॉपिक और हैं हाउस प्रॉपर्टी में, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक तो देखेंगे हम कि कुछ हाउसेस होते हैं जो हाउसेस एग्जेम्प्ट होते हैं, है ना, जिन पे टैक्स। सर इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होंगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं एग्जाम में, है ना। हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, लास्ट में कराएंगे, लेकिन मतलब सेपरेटली नहीं आते सर, हेड्स में सेपरेटली आते हो जैसे? नहीं, ऐसे नहीं आते, जनरली नहीं आते, ठीक है। देखो अच्छा, पूरा कंपटीशन आएगा टैक्स का। यस यस। अब हम लेंगे कुछ हाउस प्रॉपर्टी जिन पे टैक्स नहीं लगता, एग्जाम्प्ट होती हैं, कुछ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एग्जाम्प्ट होती है। बहुत फास्ट एक बार देख लो क्या क्या होती है। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, अगर एग्रीकल्चर फार्म हाउस है आपका तो उस पर टैक्स नहीं लगता। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड ओनर, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन या लोकल अथॉरिटी, इनकी पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है उस पर भी टैक्स नहीं लगता। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी है किसी के पास तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होती। हमने पहले ही देखा था ओन बिजनेस, इफ एनी हाउस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, उस पर भी टैक्स नहीं लगता। और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी हमने बताया ना, तो मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 2 हो सकती है 2, वेरी गुड, 2। और पैलेस ऑफ एक्स रूलर, तो इंडिया में पहले रूलर्स थे ना 1947 से पहले, तो जो एक्स रूलर्स थे उन एक्स रूलर्स का पैलेस, और पैलेस कितना, ओनली 1 पैलेस, एक पैलेस एक्स रूलर का, वो भी एग्जाम। क्लियर है? तो ये हाउस प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ये एग्जाम्प्ट होती है। क्लियर? अब हमारे पास क्या रह गया, ओवरऑल डिस्कशन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी इज ऑलमोस्ट ओवर। 1-2 टॉपिक है छोटे छोटे। एक तो कंपोजिट रेंट अगर होगा तो कैसे ट्रीट करेंगे, दूसरा अगर जो रेंट है
वो रेंट पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी तो क्या करेंगे ट्रीटमेंट, और एक रेंट का एरियर अगर होता है या एडवांस होता है, तो अगर रेंट का एरियर होता है तो उसे कैसे ट्रीट करें। ओके फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क। सर जो आपने इंटरेस्ट बताई थी, ये हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट थी ना? हाउसिंग लोन की, यस, हाउसिंग लोन की भी और उसी हाउस की। जैसे हम 1 नंबर हाउस की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इंटरेस्ट किस हाउस की, नंबर 1 हाउस पे, लोन किस हाउस पे होना चाहिए, उसी नंबर 1 हाउस पे। क्लियर? इंटरेस्ट के केस लोन में के अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है ना सर? नहीं, लोन के इस अलावा साइड में नहीं है, और इंटरेस्ट की डिडक्शन होती है। जैसे एजुकेशन लोन है, उसके अंडर सेक्शन 80E में डिडक्शन मिलती है, तो वो एजुकेशन लोन की अंडर सेक्शन 80E, ठीक है, वो डिडक्शन में देखेंगे। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी हेड में बात कर रहे हैं तो कौन सी इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम हाउसिंग लोन की बात कर रहे हैं, केवल हाउसिंग लोन की। ठीक है, देखो एक बार इंटरेस्ट फिर से और देख लो। अगर वो हुआ नहीं तो ट्रीटमेंट ही नहीं होगा सर उसका कोई? किस पे? अगर हाउसिंग लोन है ही नहीं वो, हाँ, तो कोई तो फिर ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं होगा उसका। यस यस वेरी राइट। तो फिर केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा मिलती है। क्यों मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन? मालूम है 1999 से पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन होती थी, उसमें अलग अलग होते थे। स्टैंडर्ड डिडक्शन थी, वो बहुत सारी डिडक्शन थी, जैसे रिपेयर की डिडक्शन, मेंटेनेंस की डिडक्शन, पेंट की डिडक्शन, ऐसे इंश्योरेंस की डिडक्शन, बहुत सारे अलग अलग नाम से डिडक्शन थी। 99 के बाद गवर्नमेंट ने वो खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक डिडक्शन दे रहे हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। किस बात की? आपके एक्सपेंस भी तो होते हैं, अगर आप किराए पे उठाते हैं प्रॉपर्टी तो खर्चे भी होते हैं ना, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं ना, बहुत सारे ओनर के, पेंट है, रिपेयर है, ऑल दैट। तो उन्होंने कहा कि लमसम डिडक्शन दैट इज 30%, वी आर गोइंग टू गिव यू 30% डिडक्शन, नॉट मोर देन नॉट लेस देन, स्टैंडर्ड 30%। आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ तो भी 30%, आपका 100% खर्चा हुआ तो भी 30% डिडक्शन देंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। इंटरेस्ट अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी। और ये जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है ड्यू बेसिस पे मिलती है, ड्यू बेसिस पे। क्लियर है? जितनी इंटरेस्ट इस ईयर में ड्यू हो गई उसकी डिडक्शन मिलेगी। दूसरा, पैनल इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। अगर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। क्लियर है? ओके सर। एनी अदर